meeting ends, it will save to your computer. Okay. All right, I've started the recording now. Well, I guess welcome everyone. One Sky के पहले introductory session में thank you for joining us. I know कि ये time बहुत लोगों के लिए comfortable नहीं है. It's Saturday 1 p.m. Many of you have extracurriculars, many of you have other commitments. So thank you for joining us. We can discuss about the time later on if there is a better time that will suit most of us or all of us, hopefully, for the coming weeks. But firstly, we will introduce ourselves a little bit and we'll tell you a little bit about what we do, what field of astronomy research are we in, and our plan going forward in the next 12 or so weeks, what materials we are trying to cover, what we want to basically do in this program, what we want you to get out of this program. We will talk a little about that. And then we'll talk to you just generally. आज वैसा कुछ first week का material हम नहीं start करेंगे. We will just do an introductory session. We'll just chit chat casually. We'll answer if you have any doubts, if you have any questions, and we will, we'll introduce each other to ourselves. So firstly, my name is Ayan Acharya. I'm a postdoctoral fellow at Johns Hopkins University in astronomy, obviously. I'm originally from Kolkata in India. I did my PhD at the Australian National University after studying from Kharagpur. And after my PhD, I'm doing my postdoc here in Baltimore in the US. I work on galaxies. So, like everything we are made of, they were formed in a star at some point. And galaxies are basically these huge, huge structures in our universe, which are made of lots and lots of stars and gases and dust, right? So I study those things. I particularly study galaxies which are really, really far away, which means I get to travel back in time and I study how the universe looked when it was much younger. The universe was a baby, basically. That's what I study. And I can tell you a bit more in more details about what I do if there is interest in a bit. But that's all for now. I guess I'll pass it over to Sweta for introducing her. Hello, guys. So I'm Shweta. I'm originally from Karnataka in India, but I have done my PhD in the US, and then after that I moved to Rome, and now I'm a postdoctoral fellow in the UK in Birmingham. So what I do is I do research in something called gravitational wave astronomy. It's a slightly non-conventional astronomy in the sense that when you think about astronomy, you're thinking about people looking with telescopes into the sky and looking at objects that are bright and that shine, right? I do something that is slightly on the other end of the spectrum where I don't look at things that actually emit light. I look at things that are very dense and dark. And I look at how they affect the space and the time around us when something violent happens, when something like when two black holes collide with each other, or when something called neutron stars, which are very, very, very dense stars, what happens when they come very close to each other and they merge. So most of the times the stuff that I study are things that you cannot see with traditional telescopes. Instead, we do something called an interferometry, which we will talk about later if there is interest. But that's what I look at. I look at black holes and I look at things that are very compact and things where you expect gravity to be very strong. So it doesn't behave like how you expect gravity to behave around in Earth. So a lot of things change because of that. So, and I study these dynamics. Hi, I see your hand up. Shashi. Yes. Sweta, I'm audible? Yes, you are. Sweta, I totally request that I think you from Karnataka. I think you are well speaker of Hindi. Our students are from government school, so they don't know about the English actually. Oh, okay. Do you want me to speak in Hindi? Yes.
Please okay. put you in Hindi. It's my humble request. ठीक है तो अच्छा ठीक है तो मैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी में रिसर्च करती हूँ और ग्रेविटेशनल वेव एस्ट्रोनॉमी में तुम ऐसी चीजों को देखते हो जो तुमको जनरली यू नो जैसे जैसे ट्रेडिशनल एस्ट्रोनॉमी में एक्सपेक्ट करते हैं कि हम टेलीस्कोप के थ्रू ब्राइट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं स्काई में, उसका ऑपोजिट करते हैं हम लोग, जहाँ पे हम डार्क ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे ब्लैक होल हुआ जो जिसके आसपास तुम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो लाइट एमिट करेंगे, ये डेंस है कि वो लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को मैं देखती हूँ। ठीक है, we'll talk about it more as we progress. Shayek, do you guys also want to introduce yourself? हाँ, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो माय नेम इज सायक भट्टाचार्य। मैं अभी यूएस में हूँ। मैं जॉनसन एंड जॉनसन बोल के जो कंपनी है उसमें काम करता हूँ। अभी जॉनसन जॉनसन का वैक्सीन का कोविड में बहुत कुछ हुआ था, तो मुझको ये नाम थोड़ा बहुत पता हो सकता है। मेरा काम वैक्सीन से कोई रिलेशन नहीं था, बट हाँ, तो मैं जो जॉनसन जॉनसन में काम कर रहा हूँ अराउंड 5-6 महीने हो गया। उसके पहले मैं MIT में था, इधर ही यूएस में, जहाँ पे मैंने पोस्ट डॉक एंड इन जनरल ग्रेजुएट स्टडीज की। तो मैं OFC का पार्ट रहा हूँ स्टार्टिंग से। आई थिंक एक 1.5 साल हो गया OFC में। तो आई थिंक हम लोग एटलीस्ट देवेंद्र जी एंड ऑल से वो एल्गल ब्लूम प्रोजेक्ट रिलेटेड पहले काम किए हैं। मैं ओयन को जानता हूँ करीब 20-25 साल से, बट मुझे एस्ट्रोनॉमी का कुछ भी नहीं पता है। तो मैं भी इस कोर्स के लिए काफी एक्साइटेड हूँ कि एस्ट्रोनॉमी का कुछ पता चले। मेरे को एब्सोल्युटली जीरो पता है एस्ट्रोनॉमी का, कभी कोई कोर्स नहीं लिया, कुछ नहीं पढ़ा, तो फिर मेरे लिए भी ये कोर्स बहुत ही नया होगा। एंड इन जनरल हम लोग का ये OFC सेशंस में काफी इंटरेक्टिव रहा है। लोग सवाल पूछते हैं, जवाब देते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। कुछ भी इंटरेस्टिंग उन लोग को दिखा हो, पता हो, वो लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो आप लोग भी प्लीज फील फ्री कि कभी भी अनम्यूट करके कुछ बोलना है, कोई सवाल है, कुछ पूछना है, वो सब करने के लिए हम लोग सभी साथ में सीख रहे हैं। तो लेट्स मेक इट फन। ओके, थैंक यू। इकबाल भी बोला। हेलो, मेरा नाम इकबाल है और मैं OFC का पार्ट हूँ लास्ट 1-2 साल से। और मैंने प्राइमरीली OFC का एक और इवेंट है या प्रोग्राम है जिसको हम लोग एल्गल ब्लूम मॉनिटरिंग बोलते हैं, उस पे काम किया था और अभी भी वो चल रहा है। तो बहुत सारे लोग जैसे देवेंद्र जी उस पे पार्ट हैं। So thanks a lot, Devendra ji and Shashi Rati ji, for organizing this. I can see so many young faces, और it really inspires me कि आप लोग, you took your time out on a Saturday to listen to Ayan and Shweta to speak about astronomy. और मेरे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, वो ये है कि ये जो क्लासरूम दिख रहा है उसका एज ग्रुप क्या है, कौन सा क्लास है ये? जस्ट ये पता करने के लिए कि आप लोगों को कितना पता है एस्ट्रोनॉमी के बारे में और ये सब। These are the students of क्लास ओके, क्लास 8। ओके, एंड देवेंद्र जी, व्हाट इज द एज ग्रुप इन योर क्लास? 10 to 14 years and अच्छा, class 10 to 8 14 इयर्स। ठीक है, बढ़िया। नो, दिस इज ग्रेट एक्चुअली जो आप लोग कर रहे हैं। और आई होप आप लोगों को सब समझ में आया और सायक ने काफी चीज बता दिया ऑलरेडी। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग अयन और श्वेता से पूछिए, बिकॉज वो लोग आज के एक्सपर्ट्स हैं। हम लोग भी सीखने ही आए हैं, तो हम लोग और वेट नहीं करते, उन लोग को बोलने देते हैं। हमको भी सीखने का मौका मिलेगा। दोबारा बोलिए प्लीज। नहीं, वो बोल रहे थे कि सबको ही सीखने का मौका मिलेगा। हाँ। चलो, आई थिंक अयन एंड श्वेता आप लोग
शुरू कर दो एंड यू गाइस गो अहेड। तो क्या हम बच्चों से एक बार इंट्रोडक्शन मांग सकते हैं कि सब अपने नाम और क्या मतलब कौन से क्लास में हैं और मतलब उनका क्या फेवरेट सब्जेक्ट है बता सकते हैं क्या हमको? अम, सर मेरा नाम दीपांशु है। मैं सर मेरा नाम दीपांशु लड़कों से हूँ, 5 क्लास के। बोलिए। सर इकबाल सर नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्कार सर। और कैसे हैं आप सर? मैं बढ़िया सर। आप? Before we start this session, I would like to tell something that I have 3 years of little experience in astronomy. I have own telescope and I worked so many times during the night in open sky, and this session will help us more and more to give more and more knowledge. हाँ, I mean this is the reason. हाँ, इसीलिए हाँ जी सर, हमारे बच्चों को और हमको भी बहुत सीखने का मौका मिलेगा। इसीलिए हम कर रहे हैं देवेंद्र जी। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो क्लासरूम है ये ऑलरेडी एक एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड क्लासरूम जैसा दिख रहा है, तो ये बेसिक आई मीन इट्स अ ब्यूटीफुल क्लासरूम। ये कहाँ है ये? तो मुझे तो वो स्पार्क एस्ट्रोनॉमी तो दिख रहा है, तो इसमें अच्छा, आर्यन का ये तो आर्यन का जो आर्यन का तो कुछ इनिशिएटिव है होगा। उससे रिलेटेड है। ओके। Established by respected CDO Sir Brun sir and Aryan sir. और सर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आपने जो मेरा बेटा है हेमंत कुमार, उसका आपने एंगल ब्लूम पे काफी सारे इमेजेस देखे हैं, तो बहुत मुझे भी अच्छे लगे और आपको भी अच्छे लगे। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि वो भी बहुत अच्छी एस्ट्रोनॉमी कर लेगा सर। वो अपने आप में मैनुअल टेलीस्कोप चला लेता है और मेरे पास कुछ इमेजेस है, वीडियोस है स्काई के ऑब्जेक्ट्स की। आप चाहे तो कभी नेक्स्ट सेशन में दिखाएंगे सर, अगर आप। हाँ पक्का, बिकॉज अभी तो एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू हो गया है, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जितने भी आप लोग टेलीस्कोप से जो भी इमेजेस लें, हम लोग आप लोगों को स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में सिखाएंगे। तो जो भी होगा सारा होमवर्क एंड एक्टिविटीज उसमें शेयर करिए ताकि हम लोग फीडबैक दे और हम सकें। चाहते हैं सर हमारे ये 3 मंथ का एक कोर्स है, हमारे बच्चे चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल के, और मैं चाहता हूँ कि सर जो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ जिनका, जो एलिजिबल नहीं है, क्या वो भी बैठ सकते हैं आपके सेशन के बीच? हाँ फिर क्या हाँ, करेंगे कोई हम भी बैठ सकता है। सर ओपन एरिया में हम इसको ऑर्गेनाइज करा लेंगे, क्योंकि लैब में तो लिमिटेड सीट्स है यहाँ पे बैठने के लिए। हाँ हाँ, और थैंक यू सर। लाइक और ये सब रिकॉर्ड होने वाली है, तो जो जो सेशन में आ नहीं पाए और सुनना चाहते हैं उनके लिए लिंक्स पास ऑन किए जाएंगे, तो वो भी बात होगी। बिल्कुल। हाँ, तो शशि जैसे क्लासरूम भी बहुत सुंदर दिख रही है। आप go ahead, Sweta. हेलो। Go ahead, Sweta. I didn't catch you. यस, आई वाज टेलिंग दैट शशि जी की क्लासरूम भी बहुत सुंदर दिख रही है। कहाँ पे है ये? Same in Bulandshahr. This is also an astronomy lab. Yes. हमारी एस्ट्रोनॉमी लैब की एक खूबसूरत है बात कि सारी एस्ट्रोनॉमी लैब जो है उनका जो अंदर का इंटीरियर रखा गया है वो थोड़ा सा यूनिक रखा गया है फ्रॉम द फर्स्ट वन। तो अगर आप जाएंगे और आपको एक ही साथ 10 स्कूलों में 10 लैब विजिट करनी है, तो आपको 10 की 10 लैब जो है ब्यूटीफुली डन मिलेंगी और एक यूनिकनेस उनके अंदर होगी। जैसे देवेंद्र सर की लैब में थोड़ा सा बैकग्राउंड है, हमारी वाली लैब का जो बैकग्राउंड है वो कुछ इस तरह से है। तो यस, इट इज रियली ब्यूटीफुल लैब। इट
it's a gift from our CEO sir. बहुत ही बढ़िया, Beautiful. बहुत ही बढ़िया। नहीं, मुझे ये देख के बड़ा खुशी हो रहा है कि कि आप लोग ऑलरेडी एस्ट्रोनॉमी में इतने उत्सुक हैं, इतने इंटरेस्टेड है। आपके स्कूल में एस्ट्रोनॉमी लैब्स है, जो कि मेरे स्कूल, मैं और शायद सेम स्कूल में पढ़े थे। हमारे स्कूल में एस्ट्रोनॉमी लैब जैसा कुछ नहीं था। तो इट्स ग्रेट कि आप लोगों के पास ये ऑलरेडी है, और आप ये जो प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। होपफुली जैसे कि सबने ऑलरेडी बोला कि हम सभी साथ में कुछ सीख पाएंगे। कि मैं और मेरे और श्वेता के लिए ये भी फर्स्ट टाइम है कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं ऑनलाइन। किसी को थोड़ा कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, कि एस्ट्रोनॉमी में हम क्या करते हैं, कैसे होता है, कुछ बेसिक चीजें। तो दैट्स द मेन मतलब गोल वही है कि बस हम जो करते हैं एस्ट्रोनॉमी रिसर्च कैसे होता है उसका एक टेस्ट देने के लिए स्कूल स्टूडेंट्स को, आपके स्टूडेंट्स को, कि अगर आगे जाके वो लोग एस्ट्रोनॉमी लेके पढ़ना चाहते हैं, अगर आगे बढ़ना चाहते हैं एस्ट्रोनॉमी फील्ड में, तो वो कैसा दिखता है, क्या करना पड़ता है, कैसे होता है रिसर्च। बस उसी के थोड़ा ट्रायल या टेस्ट जो भी कहा जाए, उसके लिए ये कर रहे हैं हम, ये जो 12 वीक का प्रोग्राम। तो मैं ये सोच रहा था कि श्वेता ने ऑलरेडी बताया कि अच्छा होगा कि अगर कि हर स्टूडेंट्स का एटलीस्ट हम नाम और क्लास जान पाए, बट देन ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि पूरा क्लासरूम में है, तो आई डोंट नो हाउ इजी इट विल बी कि सब लोग आके नाम बोलना शायद मुश्किल भी हो सकता है। शशि जी, आपकी क्लास में कितने लोग हैं फिलहाल? There are 20 students right now. 20 स्टूडेंट्स। और देवेंद्र जी, आपकी क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स हैं? 22 या अच्छा। यार, तो मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने सर इकबाल जी से पहले पूछा था कि क्या 8 से कम स्टैंडर्ड वाले बच्चे भी इसमें रजिस्टर कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे जो ज्यादा मतलब ईगर टू ज्वाइन है, तो क्या उनके लिए पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज नहीं? Do you want to answer that? देखिए, हाँ श्योर, ज्वाइन तो डेफिनेटली कर सकते हैं कि एज आई सेड कि हम ऐसे सब सीखने आए हैं कुछ, तो उस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। बट हम जैसे हो रहा है क्या कहीं पे, एनीवे, हम जैसे सोच रहे हैं कि हम जैसे स्टडी मटेरियल्स बनाए हैं, हम जिस लेवल पे हम सिखाएंगे, तो वो हम थोड़ा एज्यूम कर रहे हैं कि कि क्लास 6-7 तक फिजिक्स उन्होंने पढ़ी हो। देवेंद्र जी, आप अपना जो आप म्यूट कर दीजिए, वो थोड़ा रिवर्ब हो रहा है। हाँ, जब आप बोलेंगे तब अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, आई एम ट्राई नाउ। हाँ, तो हाँ, मैं यही बोल रहा था कि ज्वाइन तो कर सकते हैं, बट आई गेस उनके लिए शायद मुश्किल होगा थोड़ा सीखना, क्योंकि उनके पास अगर वो फिजिक्स का बैकग्राउंड नहीं है ऑलरेडी क्लास 7-8 तक, तो शायद उनके लिए समझने की थोड़ा दिक्कत हो सकता है, स्पेशली बाद में जाके, क्योंकि हम वीक 9 और 10 में सोच रहे हैं कि थोड़ा सा कुछ मिनी प्रोजेक्ट कराएं बच्चों से, स्टूडेंट से, कुछ स्टेलर स्पेक्ट्रा, तारों से जो हम स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करते हैं, वो स्पेक्ट्रम हम कोशिश करेंगे कि आपको देंगे, ये मतलब आपके स्टूडेंट्स को देते हैं, फिर वो स्पेक्ट्रम कैसे एनालाइज किया जा सकता है कंप्यूटर के थोड़ा बहुत कोडिंग के हिसाब से, या फिर थोड़ा बहुत माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे प्लॉट किया जा सकता है। तो ये सब चीजें 8 से कम उम्र के स्टूडेंट्स के लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अभी, मुझे लगता है। बट वो लोग अटेंड डेफिनेटली कर सकते हैं, अगर वो लोग ऐसे क्लास में बैठना चाहते हैं, तो उस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। बट आई थिंक थोड़ा बहुत फिजिक्स का बैकग्राउंड नॉलेज एक मिनिमम लेवल तक हो, तो उन लोग समझ पाएंगे और उनको भी मजा आएगा सीखने में, यही मुझे लगता है। तो एक सेकंड, चैट में अच्छा नहीं। हाँ, तो आई थिंक सबका नाम जानना, जो ऑल्दो आई वुड लाइक टू, बट थोड़ा मुश्किल हो सकता है अभी, क्योंकि सब एक बड़ा क्लासरूम में है। तो अभी के लिए लेट्स स्किप दैट, एंड मैं जल्दी से ये बता दे, अच्छा पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये टाइम, हाँ सॉरी, गो अहेड श्वेता।
कोई एक दो लोग वॉलंटियर करना चाहते हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, ताकि हमको थोड़ा सा पता चले कि किस लेवल पे हैं लोग। पहले शशि जी के स्कूल से स्टार्ट करते हैं। हाँ, कोई एक या दो स्टूडेंट्स आके अपने आप को इंट्रोड्यूस करे और हमको बोले कि एस्ट्रोनॉमी के बारे में वो क्या जानते हैं, क्या सीखना चाहते हैं। मेरा नाम जैनब है। मैं एस्ट्रोनॉमी लैब, गैलेक्सी, नेबुला और ब्लैक होल इन सब के बारे में जानती हूँ। बढ़िया। हाय फाई। छाया, आप बोलोगे? नमस्कार, मेरा नाम छाया, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं गैलेक्सी, नेबुला और ब्लैक होल के बारे में जानती हूँ। पूरा नहीं, जितना मतलब जितना इनको पता है उतना जानते हैं। अच्छा है। बहुत बढ़िया। Recently mission platinum, so throughout that mission, so they are pretty known about what is nebula, what is galaxy, the types of like spiral galaxy, like nebula. So ये सब उनको बेसिक जानकारी है मैम, बहुत ही बेसिक। You know, I'm not the expert like you, but जितना हम कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। बढ़िया है, बहुत बहुत अच्छा। देवेंद्र जी के स्कूल से कोई इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? गुड आफ्टरनून सर, मैं सर प्रशांत कुमार, यूपीएस फ्रॉम यूपीएस बड़गांव। मैं टेलीस्कोप चलाना जानता हूँ, तो मैंने टेलीस्कोप से मून भी देखा है और भी कई स्टेप चलाता हूँ। मैं मून के क्रेटर्स भी देखे हैं। बहुत बढ़िया। ये सब चला लेता अपने आप ही। मैनुअल जो डॉप्सोनियन टेलीस्कोप है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये वाला टेलीस्कोप सर ही चला लेता, बच्चा ही स्कूल का ही है। अरे वाह, क्या बात है। और इसने आप कौन से क्लास में बोले? सॉरी, मुझे सुनाई नहीं दिया। 8 में। अब नहीं, ये एक्चुअली बहुत ही हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है ये जानना कि कि आपके स्टूडेंट्स किस लेवल तक जानते हैं एस्ट्रोनॉमी, ताकि हम उस हिसाब से हम जो बोलने वाले, हम जो कवर करने वाले हैं नेक्स्ट वीक से, हम उस हिसाब से आपको पिच करें, उस हिसाब से आपको समझाएं कि इतना आप जानते हैं और उसके आगे हम कोशिश करेंगे कि आपको समझाने की। तो ये बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल है ये जानना कि आप किस लेवल तक एस्ट्रोनॉमी ऑलरेडी जानते हैं, ताकि हम बहुत ज्यादा बेसिक ना हो जाए, ताकि आप लोग बोर हो जाए कि आप लोग अरे तो ऑलरेडी हम जानते हैं। तो इसीलिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि ये पता करना कि आप किस लेवल तक ऑलरेडी जानते हैं। हमारे साथ और भी इन दो स्कूल्स छोड़ के दो पार्टिसिपेंट्स अभी हैं, भुवनेश्वरी और शिवम। वुड यू आप लोग चाहेंगे एक एक करके अनम्यूट करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का? भुवनेश्वरी या फिर शिवम? शिवम, वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे आपको हमसे? also अपना वीडियोस ऑन कर दीजिएगा ताकि हम देख पाए कि कौन है। शिवम कह रहे हैं I कि think one of them is माइक fixing के their कुछ mic. प्रॉब्लम है। Yeah, हाँ. ठीक है, कोई बात नहीं, विल ठीक है. गेट बैक टू यू। Yeah, does any of you want to? Oh, he's fixing his mic. Yeah, he is fixing. Yeah. भुवनेश्वरी is unmuted. भुवनेश्वरी जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हो I सकता saw है। her audio connecting a few minutes ago, a few times. I'm not sure how
if it's a technical issue. Maybe she's also trying to fix the mic. Yeah. Anyway, so मुझे ये पूछना था कि before we move on to कि हम क्या कवर करने वाले हैं, कि ये टाइम स्लॉट सबके लिए, मतलब आज मतलब सैटरडे 1 PM इंडियन टाइम, ये सबके लिए कितना इजी है या कितना डिफिकल्ट है, और हम अगर इसको संडे 1 PM मूव करेंगे तो आप लोगों के लिए बेटर होगा कि बेटर नहीं होगा? क्योंकि हम बहुत ऐसे रिस्पॉन्स मिला हमको जहाँ पे काफी लोग कह रहे थे कि सैटरडे 1 PM उनके लिए सबसे सही टाइम नहीं हो पा रहा है। ये लोग तो सब बहुत जोर से ना बोलने लगे। क्या किस में ना बोल रहे हो, सैटरडे या संडे में? ना बोले कि संडे ना बोल रहे हैं? सैटरडे में ना, सर संडे ना। संडे ना। अच्छा ओके ओके। मैं बताती हूँ सर, हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं इनका बैकग्राउंड बहुत ही बहुत विलेजर्स, और ये ना इनके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो हमारे स्कूल ही एक पर्टिकुलर एक ऑप्शन है इनके लिए इस क्लास को लेने का। और समहाउ कि अगर कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं और ये उसको नहीं पकड़ पाते हैं, तो उसी टाइम पे सेम टाइम पे ये मेरे से कन्वे कर सकते हैं, मैम क्या क्या था ये आप इजी, क्योंकि हम इनके सामने बैठे हैं, तो वो होगा। और सैटरडे 1 PM में भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए सर, थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि 2 बजे छुट्टी हो जाती है और यहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत सारी उनके साथ प्रॉब्लम है, तो अगर थोड़ा सा ऊपर पहले हो जाए, लाइक अराउंड 12 हो जाए, तो दैट वुड बी बेटर। तो पहले होने का प्रॉब्लम ये है कि हम 3 टाइम जोन कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो मैं यूके में रहती हूँ, अभी मेरे लिए 7:30 बजे हो रहा है सुबह का, और आयन के लिए रात का कितना बजे हो रहा है आयन? मेरे लिए अभी 4 बज रहे हैं सुबह के। सुबह का। तो यही प्रॉब्लम ना, 3 डिफरेंट टाइम जोन के अक्रॉस कर रहे हैं, तो थोड़ा हमको टाइम स्लॉट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। But one is okay with me, not Sunday actually. Okay. और मेरे नहीं हो पाएंगे सर। Okay. Sure. हाँ, मुझे यही पता करना था। और देवेंद्र जी के स्कूल में वहाँ पे क्या रहा है आपका? सैटरडे सही है? ये टाइम ठीक रहेगा ये वाला? सर संडे में तो ज्यादा बच्चे अपने घर पर रहते हैं सर ये, और बहुत ही पॉसिबल हो जाएगा कि इनको हम कलेक्ट कर पाए यहाँ पे और गैदर कर पाए। और सर एक ये हिमांशु है, बच्चा क्लास 6 का स्टूडेंट है सर, ये बहुत ही ईगर टू लर्न है सर ये। वैसे 6 में, लेकिन मेरे को हाथ पकड़ के ले जाता सर, मेरे को लैब में ले चलो, कुछ सिखाइए मेरे को, सिखाइए। तो आपका आशीर्वाद रहेगा तो ये भी कुछ सीखेगा सर। बोलो हिमेश कुमार है सर। हिमेश कुमार है, ठीक है, तो अभी के लिए यही टाइम रख सकते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ ठीक है। और ठीक है, तो मैं जल्दी से आप लोगों ने से किन्होंने करिकुलम देखा? आपने सबने करिकुलम देखा है? मतलब हम जो आगे के जो 12 वीक्स में जो करने वाले हैं उनका एक जो डॉक्यूमेंट हमने सर्कुलेट किया था, मुझे नहीं पता आपको अब तक पहुंचा कि नहीं वो डॉक्यूमेंट। जी मिल गया हमें। और शशि जी आप लोगों ने देखा है करिकुलम? सॉरी दोबारा बोलिए। अभी नहीं देखा है यार, सॉरी सॉरी अबाउट दिस। कोई बात नहीं, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा उसका विल गो ओवर दैट अ बिट। तो व्हाट डू यू गाइस थिंक, शुड आई शेयर माय स्क्रीन और शुड आई जस्ट रीड इट आउट रफली? आई थिंक स्क्रीन शेयर करके शेयर कर लो। हाँ ठीक है, एक सेकंड। लेट्स सी, स्क्रीन शेयर। ओके, सबको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? एक गूगल डॉक खुला होगा, दिख रहा है? ओके हाँ, तो जिन लोगों ने अभी तक करिकुलम जिन लोगों को करिकुलम देखने का मौका नहीं मिला, उन लोगों के लिए थोड़ा हम जल्दी से बता देते हैं कि हम अगले 11-12 हफ्ते क्या करने वाले हैं। तो फर्स्ट वीक विच इज नेक्स्ट वीक बेसिकली, हम बस एक इंट्रोडक्शन टू एस्ट्रोनॉमी कवर करेंगे। उसमें हम बोलेंगे कि एस्ट्रोनॉमी
बेसिकली एस्ट्रोनॉमी होता क्या है, एस्ट्रोनॉमी हम क्या करते हैं, आसमान, ऑब्वियसली आसमान की चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। वो हम कोशिश करेंगे थोड़ा कि आपको थोड़ा टास्क दे कि रात को आप जाके बाहर कुछ प्लैनेट्स आइडेंटिफाई करें हमारे लिए, कुछ स्टार्स आइडेंटिफाई करें। हम लोग वो सिखा देंगे क्लास में कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सा प्लैनेट क्या है या कौन सा स्टार है। वो थोड़ा बेसिक चीज़ें हम पहले वीक में कवर करेंगे। फिर सेकेंड वीक में हम कवर करेंगे लाइट एंड स्टार्स। तो हम थोड़ा स्टार्स के बारे में सीखेंगे सेकेंड वीक में कि स्टार्स कैसे एक्चुअली क्या होते हैं स्टार्स, और उसके अंदर क्या चल रहा होता है, और उससे जो लाइट निकलती है उस लाइट से हम क्या क्या पता कर सकते हैं स्टार्स के बारे में। तो वो हम सेकेंड वीक थोड़ा कवर करेंगे। मैं एक चीज बोलूं तो व्हाट्सएप ग्रुप में एक चीज शेयर हुआ था, जो करिकुलम वाला एक पीडीएफ, वो हाँ। शेयर कर सकते हैं क्या? वो देखने में बहुत ज्यादा सुंदर है। श्योर वो श्योर वो श्योर, जो डेफिनेटली। स्टार्ट वाला, वो अच्छा रहेगा, एक बिकॉज आई थिंक उसमें हेडिंग्स भी लिखा हुआ है ना? हाँ, राइट। एक वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर्ड है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप से ही खोलता हूँ तो सबसे जल्दी होगा ये वेबसाइट, एंड देयर वी गो। कहाँ गया? ये है, ये रहा। ओके, स्क्रीन शेयर वापस करता हूँ मैं। शेयर, ओके, ये दिख रहा है सबको अभी? थैंक यू। हाँ राइट। तो जैसे कि मैं बोला था कि सेकंड वीक में हम लाइट एंड स्टार्स के बारे में थोड़ा सीखेंगे। थर्ड वीक में हम नेक्स्ट स्टेप थोड़ा आगे बढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ थोड़े दूर की चीजें देखेंगे, स्केल्स ऑफ द यूनिवर्स, राइट? यूनिवर्स में डिफरेंट चीजें, एकदम सोलर सिस्टम से लेके आप अपने सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स जो है, अपना सन है, फिर दूसरे सोलर सिस्टम्स है, स्टार्स है, गैलेक्सीज है, और दूसरे गैलेक्सीज है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे दूर जाते हुए हम थोड़ा यूनिवर्स के डिफरेंट जो डिस्टेंसेस होते हैं, कुछ चीजें हमारे नजदीक है, कुछ चीजें हमसे बहुत दूर है, वो हम कैसे स्टडी करते हैं, वो हम कैसे कंपेयर करते हैं, वो थोड़ा पता करेंगे। फिर फोर्थ वीक में, फोर्थ और फिफ्थ बेसिकली दोनों वीक कंबाइन करके अगर देखा जाए तो हम ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स के बारे में थोड़ा पता करेंगे, जो कि मेरे ख्याल से देवेंद्र जी के स्कूल में काफ़ी बच्चे ऑलरेडी जानते हैं। आप ऑलरेडी टेलीस्कोप ऑपरेट करते हैं, विच इज़ ग्रेट, बहुत बढ़िया है। तो हम वही चीज़ों को थोड़ा रिवाइज करेंगे कि टेलीस्कोप काम कैसे करता है, टेलीस्कोप कैसे हम टेलीस्कोप से हम कैसे चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड अगर आपके स्कूल में टेलीस्कोप है, जैसे कि देवेंद्र जी के स्कूल में है, मेरे ख्याल से शशि के स्कूल में भी होगा, क्योंकि आपके पास एस्ट्रोनॉमी लैब है, तो वो हम थोड़ा करेंगे, कुछ एक्टिविटीज करेंगे टेलीस्कोप्स लेके कि क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं आप इंडिया में अभी इस वक्त शाम के टाइम पे। तो उसके बाद वीक 6 और 7 में हम एक्चुअल थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, थोड़ा सा एडवांस जाएंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में सीखेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब बेसिकली कि एक कोई भी, अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, एक तारा है या फिर एक गैलेक्सी है या कुछ भी है, एक लाइट सोर्स है, वो लाइट सोर्स से जब लाइट आती है उसको हम डिफरेंट कलर्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि मान लीजिए प्रिज्म, या फिर मान लीजिए बारिश की बूंद, राइट? जैसे कि रिफ्रैक्शन होता है और 7 रंगों में वो बढ़ जाता है। तो उस रिफ्रैक्शन के जो रिजल्ट होता है उसको, वो जो हमको मिलता है, वो उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो वो स्पेक्ट्रम एनालाइज कैसे करते हैं, वो स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व कैसे करते हैं, वो हम सीखेंगे। और स्पेक्ट्रम एनालाइज करके क्या क्या पता चल सकता है हमको वो स्टार के बारे में, वो भी सीखेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे वीक 8 में थोड़ा सा आई थिंक कुछ टाइपो है, क्योंकि वो दोबारा ऑब्जर्वेशनल टेक्निक लिखा हुआ है वीक 4 के बाद। एनीवे, उसके बाद हम एक्चुअली एक मिनी प्रोजेक्ट करेंगे जहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको एक रियल डेटा, एस्ट्रोनॉमी डेटा, एक स्पेक्ट्रम, एक जो कि कोई भी एक टेलीस्कोप से लिया हुआ है, वो हम आपको प्रोवाइड करें, आपके स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें। और हम सिखा देंगे पहले से कि वो स्पेक्ट्रा को आप कैसे लोड कर सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे आप देख सकते हैं वो स्पेक्ट्रा कैसे ऊपर नीचे हो रहा है, और कैसे उसको एनालाइज कर सकते हैं, वो हम पहले सिखा देंगे। उसके बाद वीक 9 और 10 में हम चाहेंगे कि आप आपस में ग्रुप, छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स बना के उस स्पेक्ट्रा को एनालाइज करें, और एनालाइज करके हमको काफी सारी चीजें पता चल सकता है कि उस स्टार के बारे में, कि फॉर एग्जांपल उस स्टार में कितना ऑक्सीजन है, मान लीजिए, कितना उसका टेम्परेचर क्या है ना, कितना गर्म है वो स्टार, एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें पता हो सकता है। तो वो थोड़ा मिनी प्रोजेक्ट करेंगे जहाँ पे हम पहले सिखा देंगे आप लोगों को, फिर हम आपको डेटा दे देंगे, स्पेक्ट्रा दे देंगे, हम आपको सारे टूल्स दे देंगे कि कैसे करते हैं,
और फिर हम 2 वीक टाइम देंगे। उस 2 वीक में भी हम ये सेशन जारी रखेंगे, बट हम उस 2 वीक में बेसिकली क्वेश्चंस आंसर करने के लिए होंगे, हम कुछ एक्स्ट्रा नया ऐड नहीं करेंगे। आप लोग अपने घर जाके जब आपका टाइम होगा, जब आपका ग्रुप मीट करने का थोड़ा मौका मिलेगा, तब आप अपने हिसाब से वो कीजिएगा प्रोजेक्ट। फिर लास्ट 2 वीक में हम वापस मिलके जो जिन ग्रुप का जैसे जैसे रिजल्ट निकला, वो जो हम मिनी प्रोजेक्ट करेंगे, वो जो हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट करेंगे, उसका रिजल्ट हम सारे फिर वापस इकट्ठा करेंगे। हम चाहे तो हम वो व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर बेटर होगा हम एक गूगल ड्राइव लिंक दे देंगे आपको, वहां पे आप सारे आपके प्रोजेक्ट्स, आप रिजल्ट्स अपलोड कर सकते हैं। फिर हम सबको कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्या पता चला हमको उस स्टार के बारे में। एंड फिर लास्ट वीक में हम बस रैप अप करेंगे कि ओवरऑल कि क्या सीखने को मिला, या फिर अगर आगे भी हम ये प्रोग्राम अगर करते हैं तो आप क्या क्या और सीखना चाहेंगे, क्या क्या और डिफरेंट चीज सीखना चाहेंगे। तो ये है पूरा रफली 11-12 वीक का प्लान फ्रॉम नाउ ऑन। ये रफ एक प्लान है। ऑब्वियसली एक प्लान में एक, जैसे कि मैंने बोला कि मिनी प्रोजेक्ट एक रहेगा, एक टेलीस्कोप वर्कशॉप रहेगा, जहाँ आर्यन, जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं, हम कोशिश करेंगे कि अगर आर्यन इस टाइम पे अवेलेबल हो तो वो हैंड्स ऑन आपको कुछ टेलीस्कोप कैसे ऑपरेट करते हैं दिखाए, चाहे वो डॉब्सोनियन हो, चाहे कुछ और टेलीस्कोप हो। तो कोशिश करें कि जितना इंटरैक्टिव रहे, जितना हैंड्स ऑन रहे, उतना हमको भी ज्यादा अच्छा लगेगा, एंड होपफुली आपको भी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो जैसे कि शायक ने ऑलरेडी बोला कि कभी भी मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूँ, कभी भी आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप डेफिनेटली अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या फिर हाथ